Yes, good morning, everyone. We're going to start with the lecture. Okay, so we'll continue with what we discussed last time. We were discussing the topic of error estimation. And as I explained to you that you will be given a series and you will be asked to estimate the error in certain approximation. They will tell you that if for a particular series we consider some n number of terms, then what is the error bound? Because exactly we cannot find the error as I explained you last time. So we will be supposed to find the bounds, and that bound is always going to be the upper bound. Then how to find it? So there were two theorems for this. One is the alternating series error estimation theorem. This is one theorem, and another is the remainder estimation theorem. So I told you that the alternating series estimation theorem will be applicable to the alternating series only, while the other theorem, this one will be applicable to in general any type of series. So today let's have first one to two more examples for this alternating series estimation theorem, and then we will have examples and what is this theorem, remainder estimation theorem. So I'm directly starting with the question. From that you will be able to recall that what was the statement of alternating series estimation theorem. So the question statement is, for what values of x. Now, again to clarify, now I am doing examples of power series, because हमें पता है कि power series में भी हमारे पास alternating series होते हैं, right? और जो normally alternating series है, जैसे हमने last time example किया था, you can have one more example, say n is equal to 1 to infinity minus 1 की power 1 n 1 by n. This is also an alternating series. So in this, if they ask you to estimate the error, so they will tell you what is the error after approximating the sum with six terms. So six terms means they have considered six terms. So that means जो seventh term होगी आपकी series की, that will be the upper bound. So your error will be less than equal to 1 by 7, because I told you that how to find now that term, seventh term. So you just put that value of n in the general term, because n is starting from 1. So its seventh term is going to be obtained when you put n equals to 7, and you just have to consider the magnitude of it, this part. So this is the answer. So these are very easy when they are the normal series, means without power series. So now we'll try the same theorem on the power series. So the question statement is, for what values of x can you replace log 1 plus x by x with an error of magnitude no greater than 1% of the value of x. So this is a question statement. Let's try to understand the question statement first. So from this point onwards, you will see that these kind of statements will be given, right? That what is the error, what is the values of x. So as I just told you that we are according to the alternating series. Okay, let's first look at what series is given to us, because this is the first thing we have to do in this kind of question. This is a question of error analysis. So firstly, we have to identify whether it's an alternating series or it is not alternating. So this function is given to you, log 1 plus x. So what you can do is directly use the series of log 1 plus x, or you can do derive the series first and then apply the error. So because error estimation के questions करने के लिए आपके पास series पता होना चाहिए, because only then you can do the question. So if you already know the series, if that happens to be a standard function like exponential, sine, cosine, I told you कि चार पांच series आप याद रख सकते हो. This is one of them. So you can directly use that. Otherwise, you can always derive. And which series you have to derive? The Taylor series with x equals to a equals to 0, means the Maclaurin series, because you see they're asking you to replace log 1 plus x by x.
सो मीन्स उस सीरीज में x की पावर्स हैं, x माइनस समथिंग की पावर्स नहीं है, राइट? सो आपको मैक्लॉरिन सीरीज डिराइव करना है. सो राइट नाउ आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस बिकॉज I can use that directly. Maclaurin series for log 1 plus x is, if remember the series, so the Maclaurin series actually for log 1 plus x is x minus x square by 2. We already derived it previous lectures, minus x4 by 4 and so on. So this is your Maclaurin series. Now what they are telling you, that you have to replace log 1 plus x by x. So by x means you just have to retain the first term. So here is the truncation. They are telling you to include the first term. Just the way they told you here that how many terms you have to consider in the approximation. So this is another way of telling that these many terms you have to consider. So they will not count the terms for you. They will just tell you the power of x कि यहाँ तक आपको terms consider करनी है, right? So यहाँ से clear हो जाएगा कि आपको कितनी terms को रखना है, तो उसके according हम error calculate करेंगे. So this is the next thing which you should be looking for. Series किसकी है, कौन सी सीरीज है? अब ये क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, एज यू कैन सी द टर्म्स आर ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस. So this is an alternating series. Therefore, I can apply alternating series estimation theorem on this. The next question is कहाँ ट्रंकेट करना है? So वो आपको स्टेटमेंट से आंसर मिलेगा by x. You have to keep the terms up to x. The similar question could be you can keep up to you can keep up to the same question can be x minus x square by 2 x की जगह पे. तब आपको पता चल जाता है अच्छा पहली दो टर्म्स रखनी है, फिर आप यहाँ पे ट्रंकेट करते, उसके बाद कंसिडर करते, राइट? सो ये मैक्लॉरिन सीरीज ही होगी, टेलर सीरीज नहीं होगी, बिकॉज आई टोल्ड यू टेलर सीरीज इन जनरल में x माइनस ए की पावर्स आती हैं पावर सीरीज में, बट मैक्लॉरिन सीरीज में वो जो a होता है वो जीरो होता है. So this is they are talking about Maclaurin series, not the Taylor series. अगर वो टेलर सीरीज डिराइव करने को बोलते सो वो स्पेसिफिकली लिखा होता कि फर्स्टली फाइंड द टेलर सीरीज एंड देन डू द एरर एस्टिमेशन अबाउट द पॉइंट दिस. नो पॉइंट इज मेंशन्ड, तो इट्स डिफॉल्ट Maclaurin series you have to derive, right? So I identified that I will be applying here alternating series estimation theorem because ये series alternating series है. Now what is that statement of alternating series estimation theorem? This tells me that the magnitude of the error is less than the magnitude of the n plus 1th term. n plus 1th term means आपको n plus 1 अब याद रखने की जरूरत नहीं है. It's just immediately next term. You just remember it like जहां पे आपने ट्रंकेशन किया है मीन्स जहां तक कंसिडर करने को बोला है, immediately next term is your error bound, mod of it, right? The magnitude of it you have to consider. So mod लिखोगे क्योंकि x can be positive or negative also, but we'll be writing the mod of it. So the mod of error is less than mod of x square by 2, which is what it is. Mod of x square by 2 is nothing but x square by 2. So this is the first thing we have to do. Firstly, we need to derive the error, that this is the error bound, right? But if you now look carefully at the statement of the question, this is the inequality we have reached. तो यहां तक हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होगा. जितने भी क्वेश्चन आप ऑल्टरनेटिंग सीरीज के करोगे उसके ऊपर ऑल्टरनेटिंग सीरीज एस्टिमेशन थ्योरम लगाओगे, यहां तक हर क्वेश्चन सेम है. इट्स वेरी इजी. सीरीज लिखो, ट्रंकेट करो, इमीडिएटली नेक्स्ट टर्म को उसको लिख दो. जब आप इस स्टेज पे पहुंचोगे देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन. अब ये एक इनइक्वालिटी है, इसमें एक तरफ एरर है और एक तरफ एक्स वेरिएबल है. सो आपको क्वेश्चन रीड करना है कि गिवन क्या है. कुछ क्वेश्चंस में आपको x की वैल्यूज गिवन होगी तो आप वो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एरर की बाउंड आ जाएगा. कुछ क्वेश्चंस में आपको एरर की बाउंड गिवन होगी तो आपको x फाइंड करना है, राइट? सो दिस इज वेरी इजी. एक इक्वेशन है, एक इनइक्वालिटी है, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन्स हैं. एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये गिवन होगा, राइट? ये फाइंड करना है. और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में उल्टा हो जाएगा, ये गिवन होगा और ये फाइंड करना है. दिस इज एज सिंपल एज दैट. एक एक्सप्रेशन को यूज करके आप कर सकते हो. सो सेम इज हियर. वी रीड द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड.
सो दे आर आस्किंग फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x. सो यहीं से क्लियर हो गया कि x तो डिटरमाइन करना है हमें. वी हैव टू डिटरमाइन कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए जो है x की कौन सी वैल्यूज के लिए हमें एरर बाउंड गिवन है. सो व्हाट इज द एरर बाउंड? दे आर आस्किंग एरर शुड बी नो ग्रेटर देन 1% द वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, वो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं या किसी भी तरीके से दे सकते हैं. सो वट एवर इज गिवन वी जस्ट हैव टू इंटरप्रेट इट इन अवर लैंग्वेज. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक हमने सिर्फ थ्योरम लगाई है. उसके बाद आपके क्वेश्चन दो तरह के होंगे. किसी क्वेश्चन में x गिवन होता है, किसी क्वेश्चन में एरर का बाउंड गिवन होता है. तो इस क्वेश्चन में इन्होंने एरर बाउंड तो हमें दे दिया है कि एरर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए. नो ग्रेटर देन मीन्स इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस. तो ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जो एरर को इतने ही रखेंगी, एरर का बाउंड इतना ही रहेगा. सो लेट्स राइट दिस, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 1% ऑफ x? 1% of x. So 1% means 0.01 x, राइट. और हमेशा पॉजिटिव एरर्स की बात होती है, एरर्स का बाउंड कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं. सो डिफॉल्ट वहां पे मॉड x आना ही चाहिए, राइट. सो योर एरर शुड बी लेस देन, your error should be less than. Now this is the statement we are interpreting, which is what they want. They want error should not be greater than, not be greater than means less than 1%. 1% means 0.01, value of x means mod of x. So this is what we want to satisfy, and this is what we have, right. So let me just move on. ये है हमारे पास, ये तो है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द थ्योरम. एंड व्हाट वी एक्चुअली वांट कि हमारा एरर जो है 0.01 मॉड एक्स नहीं से मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी वांट. एक्स स्क्वायर बाय 2 शुड बी लेस देन this, right. Because there is only this way in which this equality, this inequality can be satisfied. This is the information we are having from the theorem. This is the information which we want to satisfy according to the question. So this can be only satisfied if this happens, right. There should not be any confusion in this. So error is already less than this. अगर हम इसके आगे ये लिख देंगे कि ये फर्दर इससे लेस है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा कि ओके एरर इज लेस देन 0.01 mod x. डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. इसको ऐसे नहीं लिखना है, वो गलत हो जाएगा. बिकॉज अगर आप x स्क्वायर बाय 2 से इसको कम मानोगे, तब कोई गारंटी नहीं होगा कि एरर उससे कम है या नहीं, राइट. सो दिस हैज टू बी डन इन दिस वे. This is what we want to satisfy. This is what we have. So for this to be true, this should happen. Yes. मैम फिर हमने पहले वाला कैसे लिख, मैम तो ऐसे हो गया जैसे मैम 4 is greater than 1 and 6 is greater than 1. मैम तो we are saying that 6 is greater than 4. मैम बट हमें इनकी दोनों की वैल्यूज नहीं पता, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि लेस देन का साइन आएगा कि ग्रेटर देन का साइन आएगा? इनइक्वालिटी उल्टी भी तो हो सकती है. मैं वही समझा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, आपको समझ में आ जाएगा. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव. इसको तो वॉयलेट नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज कमिंग फ्रॉम द थ्योरम, राइट. ये थ्योरम से आ रहा है कि हमने कंप्यूट किया है कि एरर जो है इससे कम ही होगा, ये होना ही चाहिए. इट्स कमिंग फ्रॉम द थ्योरम. दिस इज समथिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड. दे आर सेइंग कि आप कुछ भी करो, एरर जो है ये इससे कम नहीं होना चाहिए. 0.01 of mod x means 1% of x से कम नहीं होना चाहिए. So this is something you want to satisfy. So this is the way to satisfy this one, that if I put कि ये जो नंबर है अगर ये इससे कम ले लूं मैं, right, if I take this less than this one, then automatically ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, राइट. दिस इज समथिंग लाइक 1 ऑलरेडी लेस देन 2 है. आई वांट कि जो 1 है वो 3 से लेस आए. सो ऑटोमेटिकली 2 विल बी लेस देन 3. मींस ये आप यहाँ इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं हमारे पास, राइट. उसको सेटिस्फाई कराना नहीं पड़ता है, इसको हम चेक कर सकते हैं ये है कि नहीं है. दिस इज समथिंग लाइक x. I'll show you, taking another example. Say x है यहाँ पे, x 2 से छोटा है. ओके, what do you want कि x जो है आपके पास एक पर्टिकुलर कोई और वैल्यू है, से
उसको अननोन ले लेते हैं c, what you want कि x जो है c से छोटा ही रहे. So what is the safest choice? Safest choice है कि c को आप 2 से बड़ा ले लो, क्योंकि 2 से तो हम श्योर ही है ना कि x 2 के लेफ्ट में ही है. अगर आप c इधर ले लोगे, राइट, तब कभी कभी तो x c से छोटा होगा. मींस अगर आप c जो है 2 से छोटा ले लोगे तो क्या चांसेस हैं, c यहाँ पे भी हो सकता है. तो जैसे c यहाँ पे जाएगा x तो c से बड़ा हो गया, राइट. सो what is the safety choice? Safety choice is c को 2 के राइट पे ही रखो, क्योंकि दैट विल मेक श्योर कि x हमेशा c से छोटा ही रहेगा, क्योंकि x 2 से छोटा है. और अगर आप c को 2 से बड़ा रखोगे, राइट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट एनालॉजी. तो यहाँ पे यही है, ये आपका एरर है. ये 2 जो है ये आपका x स्क्वायर बाय 2 है, ये आपका 0.01. सो आई वांट कि ये रहे हमेशा, ये हमेशा राइट बड़ा रहे. तो द वे टू डू दैट इज इसको इससे बड़ा रखो, दैट विल मेक श्योर कि ये हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा, राइट. सो हम बस अज्यूम कर रहे हैं ना, वो अजम्पशन गलत भी तो हो सकती है. सॉरी मैम वो अजम्पशन गलत भी तो हो सकती है बाद में. आप समझ नहीं रहे हो, दिस इज रिवर्स क्वेश्चन. आपको ये इसको भी सॉल्व करेंगे हम. हमें एक क्वेश्चन बोला है कि ये कब होगा, ये अज्यूम, मैं ये नहीं कह रही कि सी जो जैसे मैं यहाँ पे समझाया कि सी ग्रेटर देन 2 होगा. इट इज समथिंग, वो कौन सी वैल्यूज है जिसके लिए ये सेटिस्फाइड होगा. आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट रिवर्स है. फॉर व्हाट वैल्यूज दिस इज गोइंग टू हैपन. तो द वन थिंग विच यू वांट टू हैपन, पहले आप उसको सेटिस्फाई कराओगे ना, फिर उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट. सो जैसे हम कहेंगे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 4 इज 0. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 4 इज 0. तब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आंसर निकालते हैं. ओके, फॉर प्लस माइनस 2 दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. तो पहले आप उसको सेटिस्फाई करा देते हो, फिर उसको सॉल्व करते हो. सो सेम इज हियर, वी आर डूइंग x की कौन सी वैल्यूज हैं कि जो ट्रंकेशन हमने फर्स्ट टर्म पे क्यों की? ट्रंकेशन से फर्स्ट टर्म पे क्यों की? आगे क्यों नहीं गए? because it was written in the question that truncation you have to done by x. आपको log 1 plus x को x से रिप्लेस करना है. तो आपने जब सीरीज लिखा, आपने देखा x तो यहाँ पे है, so that is why truncation was done at only the first term, right? So try to understand it this way. Let me just solve the question completely. That for error to be less than 0.01 of x, I should have this. This is not an assumption. This is what I'm trying to do according to the question. So अब आप इसको सॉल्व करोगे और जो x की वैल्यूज इनको सेटिस्फाई करेंगी, उनके लिए एरर जो है हमारा जो है 0.01%, 0.01 ऑफ मॉड x से सेटिस्फाई होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू टू सॉल्व दिस? सो इस इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है. सो दिस विल बी बेसिकली दिस, क्योंकि ये x है, ये x स्क्वायर है. सो एक x कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. तो दिस वाज अ रिवर्स क्वेश्चन कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए आपका जो एरर है ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अब एरर की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करनी थी, वो मैंने ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दी. ये एरर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट ये श्योर है कि ये है, तो आई कैन गो विद इट बिकॉज दिस वे दिस विल वर्क. एरर इज लेस देन दिस. If this is going to happen, then this is definitely going to happen. Error automatically उससे कम हो जाएगा, right? I hope this is clear to all. Is this clear to all? Right? I will do 1-2 more questions. It will be better clear, right? With that. So this was the question. So this was the answer, that for mod x less than 0.02, your error is going to satisfy that condition. So now let me just do one more question of this. It will be easier for you to understand again. How close is the approximation sin x equals to x when mod of x is less than 10 raised to power minus 3, and for what values of x is less than sin x. तो इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पहले तो हाउ क्लोज इज द अप्रोक्सीमेशन. सो यहाँ से क्लियर है, हाउ क्लोज मीन्स दे आर ट्राइंग टू एस्टिमेट द एरर. तो यहाँ से आपको क्लियर है कि एरर का क्वेश्चन है कि
ये अप्रोक्सीमेशन कितना एक्यूरेट है. सो दैट मीन्स हमें उसको एरर से क्वांटिफाई करना पड़ेगा. सो हमें एरर निकालना पड़ेगा. सो कौन सी सीरीज की बात हो रही है? साइन एक्स की. इक्वल्स टू किसके रखना है? एक्स के. सो पहले तो आप साइन एक्स की सीरीज लिखोगे. सो वी नो द सीरीज फॉर साइन एक्स इज दिस. अगेन आई एम टेलिंग यू, if you do not remember the series, so what you have to do is derive it first and then use it. So अब यहाँ पे equals to किसके रखना है? x के. Means यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म तक ही कंसिडर करना है. एंड सिंस दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज, so I can apply alternating series estimation theorem here. तो मुझे पता चल गया कि एरर निकालने के लिए मुझे ऑल्टरनेटिंग सीरीज एस्टिमेशन थ्योरम यूज करना है. सो अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटिंग सीरीज एस्टिमेशन थ्योरम, एरर इज लेस देन दिस मॉड ऑफ द नेक्स्ट टर्म. जो भी ट्रंकेट करने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट टर्म आपको दिखेगा वो आपका एरर बाउंड है. जस्ट टेक इट्स मॉड, राइट. तो उसका साइन अभी हम नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज एरर मैग्नीट्यूड के लिए वी जस्ट हैव टू टेक द मॉडुलस ऑफ इट. सो ये हमारा आ गया स्टेटमेंट. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पहले तो जब आप सीरीज की थ्योरम लगाते हो तो हमेशा एक स्टेटमेंट इस फॉर्म का इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगा. उसके बाद हम क्वेश्चन रीड करते हैं. तो इस क्वेश्चन में x डिटरमाइन करना था, एरर बाउंड आपको गिवन था. इस क्वेश्चन में क्या है? x गिवन है, मॉड ऑफ x का बाउंड गिवन है और आपको एरर डिटरमाइन करना है बिकॉज दे आर आस्किंग हाउ क्लोज इज दिस अप्रोक्सीमेशन. सो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द एरर बाउंड. सो दिस इज इजी. ये वाला क्वेश्चन इजी होता है. आप जस्ट इसको आगे कंटिन्यू करो. व्हाट यू आर गिवन इज मॉड ऑफ x लेस देन 10⁻³ ये कुछ भी नंबर गिवन होगा. आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x³/3. तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आगे. दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 10⁻³ सो आप सिंपली उसको उसकी अपर बाउंड से रिप्लेस कर दोगे. इट्स जस्ट बिकॉज द सेम इनइक्वालिटी इज गोइंग ऑन. लेस देन. इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 10⁻³ देन डेफिनेटली दिस इज ट्रू. इसको सॉल्व कर लो, व्हाटएवर आंसर यू गेट. So what you are getting, so you just solve this one and that way you will be getting the error bound. So this is 10⁻⁹/6. So it is 1.67 into 10⁻10. So this is the error bound. That means अगर हम sin x को x से रिप्लेस करते हैं और मॉड ऑफ x जो है आपका इस इंटरवल में लाई करता है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है, तब एरर का जो बाउंड है इतना होगा. मींस एरर विल नॉट बी ग्रेटर देन दिस. सो आई होप दिस इज इजी बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन इजी हैं. आपको सिर्फ x की बाउंड से रिप्लेस कर देना, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है. अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज लेस देन sin x. अब इक्वल्स टू x तो आपको समझ में आ गया. मींस ट्रंकेट का बताने का ऑप्शन था. अब यहाँ पे लेस देन sin x का मतलब है कि बिकॉज वी नो अब एरर का एक साइन भी होता है. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम डिटेल में कि ओवर एस्टिमेशन है कि अंडर एस्टिमेशन है. कि हमने तो अप्रोक्सीमेटली तो बता दिया कि sin x अप्रोक्सीमेटली x के इक्वल है. अब sin x x से बड़ा भी हो सकता है, x से छोटा भी हो सकता है. सो दे वांट कि x लेस देन sin x कब होगा. सो उसके लिए what you have to do is when this is going to happen, how close this is approximation. Yeah, so let me just write here. So this is sin x is equal to, I am writing it again and so on. So sin x minus x, if I shift x to this side, so sin x minus x is equal to minus x³/3 plus x5/5 and so on. So what they want, what is given to you कि x should be less than sin x. So if x will be less than sin x, so sin x minus x should be positive. Understandable? ये होना चाहिए. और sin x minus x positive means this quantity should be positive. So that means this minus x³/3 should be positive. So actually they are calling, this is the error. Error should be positive. So error positive कब होगा? जब आपका जो है लीडिंग टर्म मींस जो आपका एरर बाउंड है वो पॉजिटिव होगा. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम स्टेटमेंट, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज इट, कि जो एरर का साइन वही होता है जो आपकी ये लीडिंग टर्म मींस ट्रंकेट करने के बाद जो आपका एरर बाउंड है.
जो एरर बाउंड का साइन होता है वो ही एरर का साइन होता है। तो एरर का साइन पॉजिटिव चाहिए बिकॉज दे आर आस्किंग x शुड बी लेस देन sin x, सो अकॉर्डिंगली दिस शुड बी पॉजिटिव इंक्लूडिंग इट्स साइन। और ये कैसे पॉजिटिव होगा? व्हेन दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो x क्यूब शुड बी नेगेटिव। क्लियरली इट इम्प्लाइज x शुड बी नेगेटिव, क्योंकि x के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर तो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमारे पास x नहीं होता है, मतलब जो नॉर्मली पावर सीरीज नहीं होते हैं, वहां तो हमें दिख जाता है कि एरर का साइन क्या होगा। यहाँ पे x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फॉर दिस क्वांटिटी टू बी पॉजिटिव दिस हैज टू बी ट्रू, x हैज टू बी नेगेटिव। सो अब इसी रेंज में mod of x less than 10 raised to power minus 3 means x lies between 10 raised to power minus 3 to minus 10 raised to power minus 3 because this is the interval। तो इस रेंज में जो ये वाली वैल्यूज होंगी मींस जब x नेगेटिव होगा लेस देन 0 बट ऑब्वियसली विद इन दिस इंटरवल, यहाँ पे आपका एरर क्या होगा? पॉजिटिव। मींस यहाँ पे sin x जो है x से बड़ा होगा। दैट्स व्हाट दे वर लुकिंग फॉर कि इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यूज है जब एरर जो है पॉजिटिव होगा। सो वो एडिशनल क्वेश्चन था जिसमें एरर के साइन की बात कर रहे थे, तो दैट आल्सो वी आंसर्ड यूजिंग द एस्टिमेशन थ्योरम। सो मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना इज इजी, साइन के लिए आपको बस देखना है कि कौन सी टर्म को उन्होंने क्या बोला है, राइट। सो आई होप दैट इज अंडरस्टूड। सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं कि एरर गिवन होगा तो कैसे यूज करना है और एक्स गिवन होगा तो कैसे यूज करना है। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस हम दूसरी थ्योरम से भी करेंगे, तो वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा if any doubts you have। So let me just give you the statement of remainder estimation theorem। So remainder estimation theorem, as I told you, is going to tell us that whether a series, power series is going to be, what is the error in the power series. So for remainder estimation theorem, this is actually also called Taylor's theorem। So there is a Taylor's theorem, uski corollary hai, so I'm just merging them in one because there is no point in just remembering the statement, hame unko use karna seekhna hai। So let me just give you the statement। So if f has derivatives of all orders in open interval I containing x containing a, you know that's the point, then f of x is equal to f of a plus x minus a f dash a। So I know what I'm writing is just the Taylor series expansion and so on। So there will be some general term, the nth term plus the remainder term। So if you look carefully, जब हम लिखते हैं कि टेलर सीरीज इस फंक्शन का ये है, तब हम उसको इक्वल टू एफ एक्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं दिस इज द टेलर सीरीज। But now this theorem is telling us the question which few of you asked me in the previous lectures, that कि वो उसी के फंक्शन के ही इक्वल होती है जो e रेज टू पावर x की हम सीरीज डिराइव करते हैं और जो sin x की हम सीरीज डिराइव करते हैं वो एक्चुअल में अपने फंक्शन के ही इक्वल होती है। That result will be coming from here कि now we are able to write fx is equal to its Taylor series। Actually this is an infinite series, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, nth टर्म तक तो टर्म्स लिखी हैं, उसके बाद वाली जो टर्म है उसको हमने क्या बोल दिया है, रिमाइंडर टर्म और एरर टर्म। सो दिस इज ऑन द सिमिलर लाइंस, जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग सीरीज में कहा था कि कुछ फाइनाइटली मेनी टर्म्स हम कंसिडर करते हैं, उसके बाद पीछे जो भी बचा विच इज द इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, दैट इज नथिंग बट द रिमाइंडर और द एरर। तो वहां पे हम उसको एरर वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे रिमाइंडर वर्ड यूज कर रहे हैं, बट एसेंशियली द मीनिंग इज सेम। सो द सीरीज fx, द फंक्शन fx कैन बी रिटन एज pnx plus rnx। So this is pnx। If you remember what is pnx, pnx was the Taylor's polynomial। Polynomials के लिए हमने notation यूज किया था। So pnx was the Taylor's polynomial of order n, n ऑर्डर तक है बिकॉज हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म तक कंसिडर किया है, प्लस rnx। तो rnx इज नथिंग बट द
remainder of order n. So according to this theorem, आपकी जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज, उसके दो पार्ट्स हो गए हैं, पॉलिनोमियल एंड द रिमाइंडर, राइट. सो हम कब बोलेंगे कि ये जो सीरीज है ये अपने ही फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है, अगर उसका रिमाइंडर विल गो टू 0. सो फॉर कन्वर्जेंस of the Taylor series of f to f, मीन्स वो f को ही कन्वर्ज करे उसकी टेलर सीरीज अपने ही जनरेटिंग फंक्शन को. द कंडीशन इज दिस रिमाइंडर शुड गो टू 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी. इसकी नोटेशन से क्लियर है कि ये रिमाइंडर जो है ये n का फंक्शन भी होगा और x का फंक्शन भी होगा. सो नाउ व्हाट इज दिस रिमाइंडर? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द थ्योरम. सो रिमाइंडर इज दिस n plus 1 factorial into x minus a raised to power n, where c lies between a and x, right? So this is the theorem statement that a function can be written as polynomial plus the remainder, where the remainder is defined in a particular way, and that is called remainder of order n. So if we want the series to be convergent to the generating function, so all what we want is the remainder should go to 0. So now if you carefully look at the way we have defined the remainder, so हम proof इस theorem का नहीं कर रहे हैं, so mathematically ये कैसे आया that you won't be able to see, but I can justify you a bit about it. ये एक्चुअल में अगर हम उस सीरीज की अगली टर्म लिखते, अगर हम इसकी नेक्स्ट टर्म लिखते सीरीज की, सो इट वुड हैव बीन x माइनस ए n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1th डेरिवेटिव होता उसमें कैलकुलेटेड एट पॉइंट ए. ये भी सिमिलर है और एवरीथिंग इज सेम, इट्स जस्ट द डेरिवेटिव इज नॉट कंप्यूटेड एट द पॉइंट ए, rather it is computed at some point c. And what is the property of that point? That c lies between a and x. So kind of we have to remember this, memorize this, because this is the proof we are not doing, but this is actually generalization of mean value theorem. So I hope आप लोग मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ के आते हो कैलकुलस में, बेसिक्स में. सो उसमें हमारे पास यही होता है, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस b minus a into f dash c, where f dash c will be fb minus fa over b minus a. So Lagrange's mean value theorem, if you remember, gives you this. वहां पे भी c lies between a and b. So on any interval जब हम ये theorem लगाते हैं, so this is always satisfied. You have this continuous and differentiable function. So we know this is so fb minus fa over b minus a is equal to the slope tangent at any particular point c. There exists a point c where the slope of the tangent is exactly parallel to the chord joining these 2 points. So वो slope क्या होती है? fb minus fa over b minus a. So इसी को जनरलाइज करके आप ये देख सकते हो. तो ये टेलर सीरीज है अगर हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म कंसिडर करते हैं, मींस fx is equal to fa plus x minus a f dash a and so on. तो अगर आप सिर्फ पहली टर्म कंसिडर करते हो, तो ये जब आप इसको रिमाइंडर थ्योरम लगा के एस्टिमेट करोगे, सो देन द डेरिवेटिव विल बी रिप्लेस्ड, द a विल बी रिप्लेस्ड बाय c, वेयर c लाइज समवेयर बिटवीन a एंड b. यहाँ मेन वैल्यू थ्योरम में a एंड b होता है, वो इसी का पर्टिकुलर पार्ट है, बट हम जनरल कर रहे हैं. सो दिस इज a एंड x. So you can just think that this is generalization of the mean value theorem, or you can say the Taylor's mean value theorem is a particular part of the Taylor's theorem. But this is how you have to remember. Now c will always be a parameter. c की कोई particular value नहीं होगी हमारे questions में. It is the property which you need to remember, that c lies between a and x. So this remainder is going to be calculated like that. So let's do one question and it will be easy. तो ये जो पहला question हम कर रहे हैं ये theoretical है, numerical भी करेंगे उसके बाद में. So the question is, show that the Maclaurin series, so Taylor series के लिए theorem है, but obviously it applicable to Maclaurin series also. Show that the Maclaurin series of e raised to power x converges to e raised to power x, right, for all x. तो
तो यहाँ पे कन्वर्जेंट वाला जो पार्ट है, तो मैक्लॉरिन सीरीज पहले आप डिराइव करोगे, उसको कन्वर्जेंट आप प्रूव कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें उस सेंस में नहीं प्रूव करना है, हमें पता है वो सीरीज कन्वर्जेंट है. देयर आर टू थिंग्स, वो सीरीज कन्वर्जेंट है और वो किसको कन्वर्ज कर रही है. सो वी हैव टू एक्चुअली प्रूव कि वो अपने जनरेटिंग फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है. बिकॉज इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ e raised to power x, this is the Maclaurin series for e raised to power x. We all know that this is a power series. इसको हम convergent prove कर सकते हैं, हमने किया भी था. So the question is not about कि this is convergent. The question is about ये किसको converge कर रही है, right? So we need to prove that this is converging to e raised to power x. So according to Taylor's theorem, so this statement is Taylor's theorem. According to Taylor's theorem, e raised to power x will be this, right? Somewhere some nth term will be there and then the remainder will be there. That is how you have to write. The function is equal to the nth order polynomial plus the remainder term. Now what is the remainder term? Remainder term is fn plus 1 c n plus 1 factorial x minus a raised to power n. So where c lies between a and x. सो ये जनरल लिखा है मैंने. नाउ हम स्पेसिफिक लिखेंगे इसको इस सीरीज के लिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इस सीरीज में ए की वैल्यू क्या है? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स 0, बिकॉज ए इज 0 बिकॉज ये हम मैक्लॉरिन सीरीज है, तो टेलर सीरीज अकॉर्डिंगली जनरली ए होता है. सो ए इज 0. सो ए तो हम सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं, राइट? अब हम इसको लिख रहे हैं. और व्हाट इज द n प्लस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f? What is f? e raised to power x. इसका कोई भी डेरिवेटिव कर लो, that will be e raised to power x only. इस फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स e raised to power x हैं. अब वो n plus 1th ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ कैलकुलेट होना है? c पे. So this will be e raised to power c into x raised to power, sorry ये n plus 1 है यहाँ पे, x raised to power n plus 1 by n plus 1 फैक्टोरियल. तो what I have done is मैं रिमाइंडर की वैल्यू लिख रही हूँ. a को तो 0 ही डाल दिया है हमने, और f n plus 1 जो फंक्शन का n plus 1th ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंप्यूट किया है, उसमें हमने c लिखा है. सो दिस इज व्हाट योर रिमाइंडर इज, राइट? सो Rnx is e raised to power c x raised to power n plus 1 by n plus 1 factorial. Now to prove the convergence, I want to prove that this magnitude of this remainder should go to 0, because इसमें x है तो मुझे इसका magnitude को prove करना है कि that is going to 0, right? Now it's you have to just concentrate on this, क्योंकि जो x वाला part है वो तो हम लिमिट निकालेंगे, या दिस गोज टू 0 ऑब्वियसली एज n गोज टू इंफिनिटी. लिमिटिंग वैल्यू हमें उसका रिमाइंडर का निकालना है, बिकॉज दैट्स अ फंक्शन ऑफ n. सो फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो c का फंक्शन आएगा यहाँ पे उसका एस्टिमेट निकालना है e रेज टू पावर c का, राइट? सो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, बिकॉज x कैन बी एनीवेयर ऑन द रियल लाइन, सो लेट्स ट्राई टू एस्टिमेट दिस वन. पहले graphically you can understand. This is the graph of e raised to power x. So this is 0. Say x is positive. अगर x positive side है, so यहाँ क्या होता है? c lies between a and x. So that means c lies between 0 and x. So c lies between 0 and x according to the value, the property of the c. तो अगर x पॉजिटिव है तो c यहाँ पे होगा, एंड क्योंकि जो e raised to power x is an increasing function, so e raised to power c will always be less than e raised to power x. This is always is going to happen. e raised to power x से कम ही होगा, right? If x is positive, and if x is negative, अगर x इस तरफ है तो c यहाँ पे होगा, because c has to lie between 0 and x. So in that case e raised to power c e raised to power x से बड़ा होगा. But हमें जो भी इसमें रिमाइंडर्स को एस्टिमेट करना होता है, हमें हमेशा लेस वाले बाउंड्स चाहिए, हमें हमेशा अपर बाउंड चाहिए. सो आई कैन नॉट राइट इट लाइक दिस फॉर नेगेटिव, बिकॉज मुझे ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस ही नहीं करना है. सो आई हैव टू सी that in this case e raised to power c will be less than e raised to power 0. So e raised to power c will be less than 1. So जब x negative है, so this is true.
जब x पॉजिटिव है तो दिस इज ट्रू। तो आपको e रेज टू पावर c का बाउंड ढूंढना है, अपर बाउंड ढूंढना है। अगर एक यूनिवर्सल अपर बाउंड है आप सीधा लिख सकते हो, बट यहाँ पे x पॉजिटिव और x नेगेटिव के लिए अलग अलग है, तो वी आर राइटिंग इट दैट वे, राइट। सो यहाँ पे इट्स इजी फॉर x नेगेटिव, ये अगर मॉड पे फोकस करेंगे इसके, x रेज टू पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल, दिस इज लेस देन दिस नंबर, राइट। मैंने e रेज टू पावर c को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 से, लेस देन इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दिया, बिकॉज व्हेन x इज नेगेटिव e रेज टू पावर c इज लेस देन 1। एंड जब x पॉजिटिव है then what I am doing, actually all what I have to do is to get rid of c। मुझे c से पहले I have to get rid of, because मेरे पास ऑलरेडी 3 चीजें हैं, c है, x है, n है, जिसमें n को तो आपको लिमिट लेना है एज n गोज टू इन्फिनिटी, x को यू कांट गेट रिड ऑफ अनलेस और अनटिल उसकी कोई वैल्यू गिवन हो, तो आप c से यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन। तो c से अवॉइड करने के लिए, c को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज करनी है दैट c लाइज बिटवीन a एंड x। तो वहां से फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यू हैव टू डील, सो इट विल बी वेरी क्वेश्चन स्पेसिफिक। तो यहाँ पे फर्दर इट विल बी दिस e रेज टू पावर x ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। सो मैंने रिमाइंडर को एस्टिमेट कर लिया है, एटलीस्ट आई हैव गॉट रिड ऑफ c। नेगेटिव के लिए ये है, x जब पॉजिटिव है तो ये है। नाउ इसमें लिमिट कौन सी लेनी है अब, n गोज टू इन्फिनिटी। सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन as limit n goes to infinity x raised to power n by n plus 1 factorial, even if it is mod, what is the value of this limit? Zero, right? This value of the limit is 0. So yes, the value of this is 0, therefore this will be replaced by 0. So जैसे ही आप limit n tending to infinity mod of Rnx करोगे, you will get this, you will get this one limiting value, क्योंकि दोनों केसेस में यहाँ e raised to power x एडिशनल प्रेजेंट है, बट आई नो दैट इज समथिंग फाइनाइट, और यहाँ पे ये वाला फैक्टर दोनों में प्रेजेंट है, मींस Rnx, चाहे ये वाली केस है चाहे ये वाला केस है, एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू 0 एज आई शोन यू। तो आपके पास 0 सब्स्टिट्यूट करते ही, लिमिट लेते ही वो 0 हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव क्वांटिटी लेस देन 0 तो नहीं हो सकती है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू, सो देयरफॉर दिस मींस दैट दिस इज गोइंग टू 0, बिकॉज it cannot be negative, so therefore it has to be equals to 0, because I know that this is something greater than equal to 0. This is simple mathematics, एक positive quantity कभी भी negative नहीं हो सकती है, modulus, so the for the modulus it has to be greater than equals to 0, so the conclusion is this will be equal to 0, so convergence proved. So this is how you have to deal with this kind of questions. रिमाइंडर निकालना है, एस्टिमेट करना है, 0 प्रूव करना है, कन्वर्जेंस प्रूव हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो आपको क्लियर हो जाएगा। सो विल बी एबल टू फिनिश दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। या नाउ वी आर डन विद टाइम, सो प्लीज रिवाइज दिस लेक्चर फॉर टुमारो। थैंक यू।